ابتدا کے اسم برد و ضربست. جان لیجئے کہ اسم دو قسم پر ہے. جان لیجئے کہ اسم دو قسم پر ہے، معرفہ و نکرہ. معرفہ اور نکرہ. اسم یا تو معرفہ ہوگا یا نکرہ ہوگا. اب دونوں کی تعریف کیا ہے؟ تو آگے فرماتے ہیں معرفہ است کہ موضوع باشد برائے چیز معین. معرفہ وہ ہے کہ جو موضوع ہو واضح نے وضع کیا ہو کسی معین چیز کے لیے. معرفہ وہ اسم ہے کہ جو کسی معین چیز کے لیے موضوع ہو، مقرر ہو. یعنی مطلب کسی معین چیز سمجھ میں آئے گی. کس سے؟ معرفہ سے. جو اسم معرفہ ہوگا اس سے کوئی معین چیز سمجھ میں آئے گی، اس میں ابہام و خفا نہ ہوگا. وہ بر ہفت نوعست، اور وہ 7 قسم پر ہے. کتنی قسمیں اس کی؟ 7 قسمیں ہیں. کس کی؟ معرفہ کی. اول مضمرات، جس کا بیان گزر چکا. وہ جو 14 کر کے ضمیر، جو 70 ضمیروں کو جو بیان کیا، وہ تمام ضمائر کیا ہے؟ معرفہ ہے. اب مثال کے طور پر آپ اشارہ کرتے ہوئے کہا ہاذا، تو یہ جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں آپ اسی کو سمجھیں گے. تو ہاذا کا جو مشارن الیہ ہے وہ متعین ہے. آپ نے کہا ہوا وہ، ہیا وہ. آپ سے کسی نے خطاب کیا کہ ضربتا، تو نے مارا، تو تو نے یہ کیا ہے؟ تا. یہ بھی معرفہ ہے. تو مضمرات تمام ضمیریں کیا ہے؟ معرفہ ہے. جس سے معین چیز سمجھ میں آتی ہے. تو یہ معرفہ کی 7 قسموں میں سے پہلی قسم مضمرات ہے. دوم اعلام. اعلام یہ عالم کی جمع ہے. اعلام کس کی جمع ہے؟ علم کی. علم کا معنی نام، جیسا کہ زید و عمرو، بکر، خالد. یہ جو لوگوں کے نام ہے یا اور بھی کسی خاص شہر، خاص چیز کا جو نام ہے، سمجھے کہ نہیں؟ تو یہ علم ہے. تو یہ علم بھی معرفائی ہے. زید بولے گا تو آپ زید ہی کو سمجھیں گے. زید کا جو دوسرا ہوگا اس کو آپ نہیں سمجھیں گے. آپ کا نام مثال کے طور پر اگر خالد ہے تو آپ سے اگر پکارا جائے خالد تو آپ ہی توجہ دیں گے، آپ کے علاوہ کوئی توجہ نہ دے گا. تو خالد بول کر کے ذات خالد ہی سمجھ میں آئے گی. زید بول کر کے ذات زید ہی سمجھ میں آئے گی. عمر بول کر کے ذات عمر ہی سمجھ میں آئے گی. اسی لیے یہ کیا ہے؟ معرفہ ہے. یہ دوسری قسم تھی. وصوم. اور تیسری قسم اسماء اشارات. اسماء اشارات مضمرات میں یہ سب تو شامل ہے ہی ہے، سمجھے کہ نہیں؟ تو اسماء اشارہ جیسا کہ ذا، وہی ہاذا، سمجھے کہ نہیں؟ ہاذہی، ہاؤلائے. یہ اسماء اشارات بھی کیا ہے؟ معرفہ ہے. یہ معین چیز کے لیے موضوع ہے. جہاں آپ ہاؤلائے کہیں گے تو وہاں پہ اس کا مرجع ہوگا، وہ جس کی طرف اشارہ کا وہ سمجھ میں آئے گا، اس کا غیر سمجھ میں نہیں آئے گا. تو اسماء اشارات جو آپ نے پڑھا وہاں پہ زا، زان، زین، تا، تی، تی، زہی، تہی، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ معرفہ ہیں.
इससे भी मुतय्यन चीज ही समझ में आती है। चहारुम, चौथी किस्म मारिफा की 7 किस्मों में से चौथी किस्म अस्माए मौसूला। ये भी क्या है? मुअय्यन शय को बताने के लिए है, समझे? तो अस्माए मौसूला भी क्या है? मारिफा में से। तो वही 2 किस्म मुबहमात गोयन, और इन दोनों किस्मों को मुबहमात कहते हैं। किन दोनों किस्मों को? ये तीसरी और चौथी किस्मों को, समझे कि नहीं? मुबहमात कहते हैं। मुबहमात क्यों कहते हैं? इसलिए कि इसमें इबहाम होता है, इसमें एक तरह का खिफा रहता है, जिसकी वजाहत के लिए कुछ जरूरी हो। जैसे कि अल्लज़ी के बाद एक जुमला खबरिया का होना समझ जरूरी है, जब भी उसका माना समझ में आएगा, समझ रहे कि नहीं? इसीलिए ये तीसरी और चौथी किस्म को मुबहमात कहते हैं। पंजुम मारिफा बनेदा, पांचवी किस्म मारिफा की जो निदा के साथ मारिफा हो, जैसा कि या रजुल। आप अगर रजुलुन कहेंगे तो ये मुतय्यन और मुकर्रर नहीं है, बल्कि ये नकिरा है, सिर्फ और सिर्फ रजुलुन। और जब या लगा दोगे तो उसमें एक तरह का ताज्जुन हो जाएगा, तो लिहाजा वो मारिफा हो जाएगा। या रजुल ऐ मर्द, तो ये क्या है? मारिफा बन निदा है, निदा के वास्ते से मारिफा है। ठीक। शशुम मारिफा की छठी किस्म मारिफा बे अलिफ लाम। मारिफा बे अलिफ लाम, अलिफ लाम के साथ मारिफा हो, इसम क्या हो? अलिफ लाम के साथ। जैसे कि अर्रजुलु, अर्रजुलु का मतलब खास मर्द, अर्रजुलुन आम मर्द। जिस तरह का आपने मिनहाजुल अरबिया वगैरह में पढ़ा था, किताबुन कोई भी किताब, अल किताब खास किताब, दरसुन कोई भी सबक, अदरसु खास सबक। इसी तरह रजुलुन कोई भी मर्द, अर्रजुलु खास मर्द। तो अलिफ लाम के वास्ते से ये क्या हो गया? मारिफा हो गया। तो ये छठी किस्म थी कि अलिफ लाम के जरिए से इसम का मारिफा होना। हफ्तुम, अब 7वीं किस्म, 7 किस्म बताए थे मारिफा की कि बर हफ्त नवाज 7 किस्में पढ़े मारिफा। 7वीं किस्म ये है कि मुजाफ बयकी अजी। हाँ, 7वीं किस्म ये है कि इसम इनमें से किसी की तरफ, इनमें से ये जो ऊपर बयान हुआ, मुज़मरात, आलाम, अस्मा इशारात, अस्मा मौसूला, समझे कि नहीं, और मारिफा बे अलिफ लाम, समझ रहे हैं? तो कह रहे कि इनमें से किसी एक की तरफ मुजाफ हो, इनमें से यानी इन मारिफात में से किसी एक की तरफ इसम का मुजाफ होना क्या है? मारिफा होने की दलालत दलील है, समझ रहे हैं? मतलब अगर यूं कह लीजिए कि इसम जब मुजाफ होता है तो उसमें एक तरह की, और मुजाफ इलैहि भी बयान हो तो एक तरह की तायीर आ जाती है। तो कह रहे कि इनमें से किनमें से, ये जो ऊपर बयान किए गए हैं, इनमें से किसी एक की तरफ, इन किस्मों में से किसी एक की तरफ इसम का मुजाफ होना क्या है? मारिफा होगा। जैसा कि मिसाल के तौर पर गुलामो हु, अव्वल किस्म मारिफा के मुज़मरात बताए थे। तो अब ये देखिए, ये गुलाम लफ्ज एक इसम है। अगर आप गुलामुन कह देंगे, कोई भी गुलाम, और जब कह दोगे गुलामो हु, उसका गुलाम, तो ये खास हो गया। क्या हो गया? खास हो गया, समझ रहे हैं? तो गुलामो हु में जो गुलाम मुजाफ है किसकी तरफ? मुज़मर की तरफ, ज़मीर की तरफ। ठीक। मारिफा की पहली किस्म क्या? मुज़मरात है। तो ज़मीर की तरफ मुजाफ हुआ कौन? गुलाम, जो कि नकेरा था। अब मुजाफ होने के बाद ये क्या हो गया? मारिफा हो गया। इसी तरह वो गुलामो ज़ैदिन, दूसरी मिसाल, और जैद का गुलाम, गुलामुन कोई गुलाम। जब आपने कह दिया गुलामो ज़ैदिन, जैद का गुलाम, तो ये किसकी तरफ मुजाफ हुआ? ये आलाम की तरफ, आलम की तरफ मुजाफ हुआ। और मारिफा की दूसरी किस्म क्या है? आलाम है, समझ रहे हैं? वो गुलामो हादा, गुलामुन का माना तो कोई गुलाम, लेकिन जब गुलामो हादा कह दिया, आपने कहा ये गुलाम या इसका गुलाम, समझ रहे हैं?
जब कह दिया तो अब देखिए गुलामो हाजा, ये गुलाम किसकी तरफ मुजाफ है? अस्मा इशारा की तरफ। वो गुलामुल लजी इंदी, और मारिफा की चौथी किस्म अस्मा इशारात है। पांचवी किस्म जो है ये तीसरी किस्म अस्मा इशारात है, चौथी किस्म अस्मा मौसूला है। तो इसमें मौसूल की तरफ गुलाम मुजाफ है। और गुलामुल लजी इंदी, वो गुलाम जो मेरे पास है, तो ये इसमें मौसूल की तरफ मुजाफ है, वो गुलाम जो मेरे पास है। तो अब देखिए इसमें मौसूल की तरफ गुलाम मुजाफ हुआ, तो गुलाम क्या हो गया? मारिफा हो गया। वो गुलामुर रजुले, समझे कि नहीं? अर रजुल, ये छठी किस्म मारिफा अलिफ लाम की मिसाल में बयान किया गया था, उसकी तरफ आपने गुलाम को मुजाफ कर दिया। वो गुलामुर रजुले, खास मर्द का गुलाम। तो अब यहाँ पे लफ्ज गुलाम से असल बहस है कि गुलामुन एक नकेरा है, समझे कि नहीं? एक इसमें गुलामुन का मतलब कोई गुलाम, लेकिन इनमें से ऊपर मारिफा की जो किस्में हैं उनमें से किसी एक की तरफ मुजाफ होने से वो गुलाम, या कोई भी कह लीजिए, गुलामुर रजुल की जगह पे कलमुर रजुल कह दीजिए, किताबुर रजुल कह दीजिए, सिर्फ मिसाल के लिए लफ्ज गुलाम लाए हैं। ये नहीं कि मतलब गुलाम ही सिर्फ मुजाफ होगा, नहीं, ऐसा नहीं, बल्कि गुलाम के अलावा आप कलम को भी मुजाफ कर सकते हैं, बना सकते हैं, किताब को भी, खिताब को भी, समझे कि नहीं, मुजाफ कर सकते हैं। लेकिन एक किस्म की तरफ मुजाफ नहीं किया, वो है क्या जो कहते हैं पंजुम मारिफा बन निदा, निदा के वास्ते से जो मारिफा होगा इसमें, उसकी तरफ मुजाफ नहीं होगा, समझे कि नहीं? या रजुलों की तरफ मुजाफ नहीं होगा। अगर आप कहे तो गुलामो या रजुल, समझे कि नहीं? गुलामो या रजुल ऐसा होगा नहीं, क्योंकि या हरफ निदा है ना, इसीलिए। तो उसके अलावा तमाम ऊपर के क्या जो कहते हैं 4-5 किस्मों की तरफ मुजाफ होने से क्या होगा? मारिफा हो जाएगा। तो ये आप यहाँ पे मारिफा की तारीफ और मारिफा की किस्मों, कितनी किस्में वो याद करेंगे, और मारिफा की कितनी किस्म और उन सब की मिसालें आप याद रखेंगे। तो ये 7वीं किस्म यही है कि इस्म का मारिफा की किस्मों में से किसी की तरफ मुजाफ होना क्या है? वो इस्म क्या हो जाएगा? मारिफा हो जाएगा। वो नकेरा, मारिफा के बाद नकेरा की तारीफ देखिए। नकेरा आस के मौजू बाशत बराए चीजें गैर मुअय्यन, जो गैर मुअय्यन चीज के लिए मौजू हो। किसके लिए? गैर मुअय्यन चीज के लिए मौजू हो। और मारिफा क्या था? मुअय्यन चीज के लिए। और ये नकेरा क्या है? गैर मुअय्यन चीज के लिए वाज़न वज़ह किया हो, जैसा कि रजुलुन मर्द, फरसुन घोड़ा, कोई भी घोड़ा हो सकता है, कोई भी मर्द हो सकता है। और जब आप कह दोगे हाज़र रजुल, समझे कि नहीं? जब आप कह दो अर रजुल, ये खास हो जाएगा, समझ रहे हैं? आप अगर कह दो फरसो जैदिन, जैद का घोड़ा, अब यहाँ पे याल फरसो कह दिया आपने, तो ये क्या हो जाएगा? मुतय्यन हो जाएगा। लेकिन ये रजुलन व फरसुन क्या है? नकेरा है, कोई भी खास घोड़ा इससे मुराद नहीं है, कोई भी घोड़ा हो सकता है। आगे आप लिखते हैं विदा के इस्म बर्दो सिनफस्त, जान लीजिए कि इस्म 2 किस्म पर है। इस्म बर्दो सिनफस्त, इस्म 2 किस्म पर है, मुज़क्कर व मुअन्नस। मुज़क्कर और मुअन्नस क्या है? इस्म या तो मुज़क्कर होगा या मुअन्नस। मुज़क्कर किसे कहते हैं? उसकी तारीफ कर रहे हैं कि मुज़क्कर आस के दरवे अलामत तानीस बाशद, कि उसमें अलामत तानीस होगी, किसमें ना होगी। मुज़क्कर वो इसमें है कि उसमें तानीस की अलामत ना होगी, जैसा कि रजुलन। तो रजुलन में मुअन्नस होने की कोई पहचान, कोई अलामत है नहीं है, तो इसीलिए क्या है? मुज़क्कर है। तो मुज़क्कर जिसमें तानीस की अलामत ना हो, जैसा कि रजुलन मर्द। मुअन्नस किसे कहते हैं?
मुअन्नस आस के दरवे अलामत तानीस बाशद कि उसमें तानीस की अलामत होगी, उसमें अलामत तानीस होगी। जैसा कि इमरातुन, इमरातुन का माने औरत के हैं, उसमें अलामत तानीस क्या है? ता है। अलामत तानीस क्या है? उसमें ता है। अब अलामत तानीस कितने किस्में पर है, चलो वो बाद में पढ़ लेना, लेकिन अलबत्ता इतना याद